السلام علیکم ناظرین۔ میں نے جب یہودی چیف سیکورٹی افیسر برسام کو انگریزی کھانوں کے ساتھ ساتھ ایک آدھ یہودی کھانے کے نام بھی بتایا تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے حکم دیا کہ میں کل سے اس کے بنگلے پر پہنچ کر کام شروع کر دوں۔ رمیا تم پھاٹکر کو ہمارا بنگلہ دکھا دو، ہم میم صاحب کو بھی فون کر دیتا ہے۔ میں نے اس یہودی افیسر کے بنگلے پر خان سامہ کا کام شروع کر دیا۔ صبح صبح اس کے بنگلے پر پہنچ جاتا، ناشتہ تیار کرتا، دوپہر کا کھانا بناتا اور رات کا کھانا تیار کرنے کے بعد بستی میں واپس آ جاتا۔ یہودی افیسر برسام کی بیوی بڑی کمزور بھاری بھرکم عورت تھی۔ دن بھر کتابیں پڑھنے اور چاکلیٹ کھانے کے سوا اسے کوئی اور کام نہیں تھا، یا پھر حیفا میں اپنی والدہ سے فون پر دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ ان کے بنگلے پر کبھی کبھی شام کو سیکورٹی فورس یا فوج کے 2 افسر کھانے پر آ جاتے تھے۔ یہ لوگ برج کھیلتے، تھوڑا تھوڑا مشروب پیتے، سگار پھونکتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ ان کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر حیفا اور یروشلم میں گزاری ہوئی زندگی ہوتا۔ انہوں نے آج تک سیاسی قیدیوں یا سونیا کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں اور سونیا نام کی کوئی پاکستانی لڑکی اس جزیرے میں قید نہیں ہے۔ دوسری طرف رمیا نے میرے خان سامہ بن جانے کو میری زبردست ترقی سمجھا اور ایک روز مجھ سے اپنی لڑکی سنتھا سے شادی کی بات کر دی۔ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ میں سنتھا سے کسی حالت میں شادی نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا مشن ہی نہیں تھا، بلکہ یہ میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بھارت میں ابھی میری بیوی زندہ ہے۔ جب تک اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو جاتا، میں کسی دوسری عورت سے کیسے بیاہ کر سکتا ہوں؟ رمیا چپ ہو گیا۔ یہ بات بستی میں اڑتی اڑتی میرے رقیب کندرم کے کانوں میں بھی پہنچ گئی کہ رمیا نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کندرم کا رویہ میرے ساتھ مزید ماندانہ ہو گیا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس عرصے میں میں اپنی ایک الگ جھونپڑی بنا کر رہنے لگا تھا۔ یہ نئی جھونپڑی میں نے رمیا کی جھونپڑی کے ساتھ ہی کیلے کے درختوں کے پاس بنائی تھی۔ یہاں میں نے لکڑی کے 2 کھوکھے لا کر رکھ دیے تھے، ان میں میرے کچھ کپڑے تھے۔ میرے یہودی صاحب نے مجھے کچھ برتن بھی دے دیے تھے۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اپنے جرمن پستول کی لگی رہتی تھی، کیونکہ اگر وہ برآمد ہو جاتا تو مجھے بہت بڑی مصیبت لاحق ہو سکتی تھی۔ بستی سے صاحب کے بنگلے پر جاتے ہوئے میں پستول کو جھونپڑی کے اندر کھودے ہوئے گڑھے میں چھپا جاتا تھا۔ اس گڑھے کے اوپر لکڑی کے کھوکھے کا ایک چھوٹا سا تختہ ڈال کر میں نے اوپر گھاس اور مٹی ڈال کر ٹانٹ بچھا دیا تھا۔ پھر بھی میں جب تک بنگلے پر رہتا مجھے اس کی فکر لگی رہتی۔ کندرم میرا دشمن بن گیا تھا اور میری جھونپڑی میں گھس کر تلاشی لے سکتا تھا، اور اگر تلاشی نہیں تو وہ رقابت اور دشمنی میں آ کر میری جھونپڑی کو آگ بھی لگا سکتا تھا، لیکن میں پستول اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ خیال آیا کہ مجھے پستول جھونپڑے سے نکال کر جنگل میں کسی جگہ یا تالاب کے آس پاس کہیں چھپا دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک رات جب بستی کے سب لوگ سو رہے تھے تو میں نے گڑھے میں سے پستول نکال کر دھوتی میں چھپایا اور جھونپڑی سے نکل کر اندھیرے میں ہی عقبی جنگل والے تالاب کی جانب چل پڑا۔ جنگل میں گہرا سناٹا چھایا تھا، جھاڑیوں میں جھینگر بول رہے تھے۔ میں اس سارے جنگل سے واقف تھا۔ ابھی تالاب چند قدموں کے فاصلے پر تھا کہ مجھے انسانی آواز سنائی دی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یہ 2 آدمی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے غور سے سنا، باتیں تامل زبان میں ہو رہی تھیں۔ یہ ہماری بستی کے آدمی ہی ہو سکتے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ ان میں سے ایک آدمی کی آواز کندرم سے ملتی جلتی تھی۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں میں نے گھاس پر لیٹ کر ادھر رینگنا شروع کر دیا۔ شبنمی گھاس پر میں اس احتیاط اور مہارت کے ساتھ رینگ رہا تھا کہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کی معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ کھسکتے کھسکتے میں ایسی جگہ آ گیا جہاں سے مجھے آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ میں نے سر نیچے گھاس کے ساتھ لگا لیا اور ہمتاً گوش ہو گیا۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ کندرم تھا جو اپنے کسی تامل ساتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، رمیا لالچی ہے، پھاٹ کر اپنے ساتھ ضرور روپے لایا ہوگا۔ اس کا ساتھی بولا، تمہارا دشمن پھاٹ کر ہے، وہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے تو رمیا سنتھا کا بیاہ تم سے ہی کرنے پر مجبور ہوگا۔ کندرم خاموش تھا۔ پھر اس کی آواز آئی، میں اس کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، یہودی مجھے سمندر میں ڈبو دیں گے۔ اس کے ساتھی کی آواز آئی، پھر یہ کانٹا کیسے نکلے گا؟ سنتھا تو اسے بیاہ دی جائے گی۔ کندرم نے کہا،
कभी कभी मुझे फटकर पर शक सा होने लगता है। कैसा शक है? उसके साथी ने पूछा। कंदरम चंद सानिया खामोश रहने के बाद बोला, बस एक शक है मुझे, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, पहले मुझे खोज लगा लेने दो। मेरे कान खड़े हो गए। कंदरम को मुझ पर सिवाय इसके और क्या शक हो सकता था कि मैं असली मराठा नहीं और वहां जासूसी करने आया हूँ। ये बात मेरे मिशन के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकती थी। मैंने कंदरम से मजीद मोहतात रहने का फैसला कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कंदरम ने एक ऐसी बात जबान से निकाल दी कि मुझे फौरी तौर पर अपना फैसला मनसूख करके दूसरा फैसला करना पड़ा। और मेरा दूसरा फैसला यह था कि मुझे कंदरम को जितनी जल्दी हो सके ठिकाने लगा देना होगा। उसके साथी ने उससे पूछा था कि वो उस पर क्या शक करता है। फटकर मराठा नहीं तो फिर और कौन है? कंदरम ने उसे जवाब में कहा था, अभी मुझे सिर्फ शक है, जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मैं उसे यहूदी फौजियों के हवाले कर दूंगा, जो उसे उसी वक्त गोली मारकर हलाक कर देंगे। अब बात वाज़ेह हो चुकी थी। अब मैं इस ठौर में था कि ये अपने साथी को मेरे बारे में मज़ीद कुछ बताता है कि नहीं। अगर बता देता है तो फिर इसके साथी को भी अगली दुनिया में पहुंचाना ज़रूरी था। उसके साथी ने पूछा, कंदरम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ मुझे तो बताओ। लेकिन कंदरम बड़ा गहरा और होशियार शख्स था। कहने लगा, अभी नहीं गुपा, वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। आओ अब वापस चलते हैं, ताड़ी का नशा टूट रहा है। मैंने अपने आप को घास में छुपा लिया और सर घास की जड़ों के साथ लगाकर बिल्कुल बेहिस हो गया। मुझे इंसानी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझसे थोड़े ही फासले पर से पीछे बस्ती की जानब चली गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जा चुके हैं, तो मैं वहीं लेटे लेटे पीछे की तरफ घूम गया। अब मैं पिस्तौल अपने पास ही रखना चाहता था। चुनाचे मैं रेंग रेंग कर अपनी झोपड़ी के अकब तक पहुंचा और फिर भागकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने पिस्तौल को झोंपड़ी के गड्ढे में दोबारा छुपाकर ऊपर ज़मीन पर टाँट डाल दिया। झोंपड़ी में अंधेरा था। उसका बांसों की शाखों वाला दरवाज़ा बंद था। मच्छर राह गलाप रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। कंदरम को तो अब जिंदा नहीं रहना था, मगर उसके साथ गुफा के दिन भी लगता था पूरे हो गए हैं। कंदरम की लाश जब जंगल में मिली तो गुफा के दिल में यह शुबा ज़रूर उभरेगा कि उसे मैंने मारा है, क्योंकि कंदरम उसे मेरे बारे में बता चुका है कि मैं कोई पुरस्कार आदमी हूँ और असली मराठा नहीं हूँ। फिर कंदरम ने उसके आगे ये बात भी की थी कि वो मुझे यहूदी फौजियों के हवाले करने का इरादा रखता है। ज़ाहिर है इन तमाम कवायद पर गौर करने से गुफा का मुझ पर शक पुख्ता हो जाएगा और फिर ऐन मुमकिन है कि वो इंतकाम लेने के लिए किसी यहूदी अफसर से जाकर मेरे बारे में बात कर दे कि यह मराठा नहीं है। और कंदरम को इस पर शुबा था। यहूदी फौजियों के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। वो अपने जजीरे पर किसी मशकूक आदमी का वजूद भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। सबसे पहले मैंने गुफा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं उसे पिस्तौल की गोली से हलाक नहीं कर सकता था। पिस्तौल की गोली उसके जिस्म से बरामद हो सकती थी, मुझे गोली ज़ाय करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके लिए एक रस्सी का टुकड़ा ही काफ़ी था। गुप्पा और कंदरम बस्ती के जुनूब में अलग अलग झोंपड़ियों में रहते थे और मुझे मालूम था कि वो रात को इकट्ठे बैठकर ताड़ी पीते हैं। रात तो मैं सो गया। सारा दिन भर शाम साहब के बंगले पर काम करता और गुप्पा को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा बड़ा साफ था। मुझे गुप्पा को किसी तरीके से अंधेरे में तालाब की तरफ ले जाना था और इस एहतियात के साथ कि उसे मेरे साथ जाते हुए कोई देख न सके। कंदरम के बारे में मुझे पता था कि वो फौजी बैरक में सफाई का काम करता है और शाम ही को काम से छुट्टी करके बस्ती में चला जाता है। मैंने वक्त से पहले बस्ती आने की ज़रूरत महसूस न की। अपने वक्त पर अंधेरा हो जाने के बाद बस्ती में आ गया। रम्या और उसकी बीवी सुखमनी मेरे लिए खाना रखे इंतज़ार कर रही थीं और रोज़ की तरह उन्होंने मुझे खाना दिया। संथा ने कोको बना कर दिया और बेजारी से झोंपड़ी के अंदर चली गई। कोको पीकर नींद का बहाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। अब मैं रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सुबह ही से एक रस्सी का 2 गज का टुकड़ा झोंपड़ी के कोने में लाकर छुपा दिया था। जब रात काफ़ी गुजर गई और बस्ती के सब लोग सो गए, तो मैंने रस्सी उठाकर अपनी कमर के गिर्द लपेटी और चुपके से झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरख्तों में से होता हुआ बस्ती के जनूब की तरफ चलने लगा। मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। एक छोटा सा चक्कर काट कर मैं गुफा की झोंपड़ी के अकब में चला गया। उसकी झोंपड़ी पर गहरी खामोशी तारी थी। मैं दबे कदमों चलता झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ आ गया। झोंपड़ी के अंदर से गुफा के हल्के हल्के खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी।
मैंने बड़ी एहतियात से बांस के दरवाजे को ज़रा सा खिसका कर परे किया और रेंगता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर कोने में मिट्टी के तेल का छोटा सा लैंप झिलमिला रहा था और झोंपड़ी में मिट्टी के तेल के साथ ताड़ी की बदबू शामिल हो रही थी। गुप्पा ताड़ी पीकर फर्श पर चादर ओढ़े बेसुध पड़ा था। मैं रेंगते रेंगते उसके मुंह के पास आ गया। वो गहरी नींद सो रहा था। मेरा टारगेट मेरे सामने था। मैंने रस्सी कमर से खोलकर उसका फंदा बनाकर हाथों में पकड़ा और गुप्पा के सिरहाने की तरफ जाकर उसे आहिस्ता से टहुका दिया। दूसरी तीसरी बार हिलाने से वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसे सिर्फ बिठाना ही चाहता था। दूसरे ही लम्हे रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में तंग से तंग होता जा रहा था। फिर गुप्पा मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर कंधे पर डाला और झोंपड़ी से निकलकर जंगल वाले तालाब की तरफ रवाना हो गया। तालाब भी अंधेरी रात में सुनसान था और वहाँ जैसे उल्लू बोल रहे थे। मैंने गुप्पा की लाश तालाब के किनारे एक जगह अंधेरे में रख दी और तलाश करके एक पत्थर उठा लिया। लाश को रस्सी की मदद से उस पत्थर के साथ बांधा और फिर बड़े आराम से उसे तालाब में डाल दिया। घड़प की आवाज़ के साथ भारी पत्थर गुप्पा की लाश को लेकर तालाब में गायब हो गया। एक दुश्मन बड़ी खुशसलूबी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं खामोशी से जंगल में से गुजरता वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। दूसरे दिन गुप्पा शाम तक नजर न आया तो बस्ती वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कंदरम खास तौर पर उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। रात को मैं काम करके वापस आया तो कंदरम ताड़ी पीकर बस्ती के सब लोगों को गलियां बक रहा था। रमिया ने मुझे कहा कि मैं उस तरफ ना जाऊं क्योंकि वो मुझे भी गालियां दे रहा था। मैंने कहा, दादा वो मुझे क्यों गालियां देता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? दादा बोला, बस मैंने तुम्हें बता दिया था फटकर। कंदरम बड़ा बदमाश और बदकिरदार है। वो मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करना चाहता था, इसलिए वो मेरा और तुम्हारा भी दुश्मन बन गया है कि मैंने उसे अपनी बच्ची का हाथ नहीं दिया। मुझे कंदरम की गालियां बकने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। रम्या ने कहा, गुप्पा कहीं गुम हो गया है तो इसमें बस्ती वालों का क्या कसूर है? हो सकता है वो ताड़ी पीकर कहीं जंगल में बेहोश पड़ा हो। मैंने रमिया दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके घुटने छुए और अपनी झोंपड़ी की तरफ चला। रमिया नारियल पी रहा था। बोला, तुम आराम करो बेटा, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम्हें बहराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने एक बार फिर वापस मुड़कर बड़ी आजी से रमिया दादा को हाथ जोड़कर राम राम किया और अपनी झोंपड़ी में आते ही चौकन्ना होकर बैठ गया। कंदरम भरा हुआ था, उसे ताड़ी चढ़ गई थी और वह मेरा नाम लेकर मुझे गालियां देने लगा था। मैं अपनी झोंपड़ी में उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। खतरा था तो यही कि कहीं वो गालियां देता नशे की तरंग में मेरी झोंपड़ी में ना आ जाए, फिर मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती और उसकी बदकिस्मती कि उसने ऐसा ना किया और गालियां बकता बकता अपनी झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। जब हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया और मेरी घड़ी ने रात के 11 बजा दिए तो मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक रुमाल था। मैं कंदरम की गर्दन और मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि 2 रातों के अंदर अंदर एक शख्स के गायब हो जाने और दूसरे के पुरस्कार तरीके से मर जाने के बायस वहाँ के यहूदियों को शक हो सकता था। मुमकिन था वो इस तरफ तवज्जो बिल्कुल ना देते क्योंकि एक शख्स ज़्यादा ताड़ी पीने से भी मर सकता था। लेकिन अगर उनको शक पड़ गया तो वो लाश को अपने बर्न लेबॉर्ट्री में ले जाकर कंदरम के चेहरे और गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशान ले सकते थे। जंगल पहली रात की तरह खामोश और तारीक था। बस्ती की लालटेन बुझ गई थी। सब गहरी नींद सो रहे थे। यहाँ तकरीबन सभी मर्द रात को ताड़ी ज़रूर पीते थे। उनका ख्याल था कि इससे उन्हें मच्छर नहीं काटते और उन्हें मलेरिया नहीं होता। मैं दबे दबे कदमों चलता कंदरम की झोंपड़ी के करीब आकर रुक गया। झाड़ी की ओट में होकर इर्द गिर्द का गहरी निगाह से जायजा लिया। झोंपड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर से कंदरम के नशावर खराटों की आवाज़ आ रही थी। यह बड़ा आसान टारगेट था। मुझे उसे हलाक करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, मगर यह मेरे मिशन का एक हिस्सा था। मैं झोंपड़ी की दीवार से लगा एक एक कदम एहतियात से उठाता दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। बस मेरी सारी एहतियात सिर्फ इतनी थी कि बस्ती का कोई आदमी मुझे झोंपड़े में दाखिल होते हुए ना देख ले। एक बार झोंपड़ी में दाखिल होने के बाद मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैं लपक कर बैठ गया और बैठे बैठे झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा था और ताड़ी की बदबू से फिजा बोझल हो रही थी। कंदरम फर्श पर ही पहलू के बल पड़ा था। उसकी गर्दन में रुमाल डालने की देर थी कि मेरे एक ही झटके ने उसका काम तमाम कर दिया।
अगले रोज़ वो अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया। सब ने यही समझा कि ताड़ी ज़्यादा पी जाने से सोते में उसके दिल की हरकत बंद हो गई है। किसी ने कंदरम के बारे में कोई अफसोस न किया, क्योंकि उसने सारी बस्ती का नाक में दम कर रखा था। रमिया दादा बहुत खुश था कि उसकी बेटी का दुश्मन ख़त्म हो गया। 1 महीना गुजर गया, लेकिन मुझे कोई कामयाबी न हुई। अभी तक सोनिया के सिलसिले में मुझे मामूली सी कामयाबी भी नहीं हुई थी। इस दूर अफ्तादा खुफिया इसराइली कम्प्लेक्स में एक कुशादा स्टोर भी था, जहाँ से खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया मिल जाती थीं। एक शाम बरसाम यहूदी की बीवी ने मुझे साथ लिया और स्टोर में सौदा सलफ खरीदने आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात एक यहूदी मेजर की बीवी से हुई। दोनों आपस में इब्रानी ज़बान में बातें करने लगी। वो बड़ी आज़ादी से एक दूसरे के खामदों के बारे में बातें कर रही थीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं उनकी ज़बान बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने अपने ख़ानदानों की अय्याशी की दास्तानें बयान करके एक दूसरे से उनका सदोबाब करने की तरकीबें पूछ रही थीं। मेजर की यहूदी बीवी ने कहा, मैंने तो अपने खामद को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर तुम शराब पीकर जेल की तरफ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरे साहब की बीवी ने तज्जुब से पूछा, तुम्हारा खामद शराब पीकर जेल किस लिए जाता है? मेजर की यहूदी बीवी ने नाक सकोड़ कर कहा, वहाँ यरूशलेम की एक लीडर औरत उम्र कैद काट रही है, ये उससे मिलने जाता है। वो बड़ी बदमाश औरत है। मैंने सुना है कि एक बार जेल के वार्डन से मिलकर यहाँ से फरार होने की कोशिश भी कर चुकी है। बरसाम की बेगम बोली, बहन मेरा खामद शराब ज़रूर पीता है, मगर जेल वाली औरतों के पास नहीं जाता। हालांकि एक दिन वो किसी नौजवान कैदी औरत का जिक्र भी कर रहा था, जो शायद कोई पाकिस्तानी है। यहूदी मेजर की बीवी बोली, मैं तो कहती हूँ कि हमें इस जेल की औरतों को मार डालना चाहिए। क्या करें, 6 माह के लिए तो हम यहाँ आती हैं, हमारे पीछे न जाने ये मर्द क्या क्या गोल नहीं खिलाते होंगे। यहूदी मेजर की बीवी का बच्चा उसे खींच रहा था। वो खुदा हाफिज़ कहकर किचन वेयर वाले डिपार्टमेंट में चली गई। उस औरत की ज़बानी मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका था कि सोनिया इसी जजीरे की जेल में कैद थी। बंगले पर आकर मैं किचन में दोपहर का खाना तैयार करने में लग गया। बरसाम की बीवी यानी मेरी मालकिन अपने कमरे में सोफे में धसी सेब खाते हुए कोई इसराइली फैशन मैगजीन पढ़ने लगी। मैं उसे काफ़ी देने उसके एयर कंडीशन कमरे में गया तो वो सोफे पर टांगे फैलाए रिसाला पढ़ रही थी। आध खाया सेब उसके हाथ में था। मैंने काफ़ी खामोशी से मेज़ पर रख दिया। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में ठंडक के साथ साथ बड़ी खुशगवार खुशबू फैली हुई थी। मैं जाने लगा तो उसने आवाज़ दी, डीकर अलमारी से मेरा सिगरेट केस पकड़ा दो। ये लोग मुझे फटकर की बजाय डीकर कहकर पुकारते थे। मैंने सिल्वर सिगरेट केस अलमारी से निकालकर बेगम को दिया और उसके हाथ देकर कहा, मैडम आपके हाथ की लकीरें बड़ी वंडरफुल हैं। इस किस्म की बातें औरतों की बड़ी कमज़ोरी होती हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ क्यों न रखती हों। ऐसा मैंने जानबूझकर कहा था। इस भारी भरकम यहूदी औरत के फीके नीले ढीले मुझे तकने लगे। अरे डीकर, क्या तुम हाथ का इल्म जानते हो? मैंने कहा, यस मैडम, मैंने एक इंडियन जोगी से यह थोड़ा थोड़ा सीखा था। यहूदी बेगम ने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। तो फिर बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है? मैंने बेगम का हाथ थाम लिया और उसके हाथों की आम किस्म की बुझी बुझी सी लकीरों को गौर से देखने लगा, जिनके खतूत और जावियों को मैं बिल्कुल नहीं समझता था, मगर मैं उन्हें इस तरह गौर से देख रहा था जैसे एक एक लकीर से वाकिफ़ हूँ। 2-3 बार मैंने सर को असबात में हिलाकर एक बार नफ़ी में हिलाया तो बेगम बोली, डीकर कुछ मुझे भी बताओ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या हमारी कोई औलाद नहीं होगी? मैं लकीरों पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम यहाँ आपके यहाँ 2 लड़कों की पैदाइश लिखी है। यहूदी औरत खुशी से तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, डीकर तुम मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, नहीं मैडम, 2 खूबसूरत बच्चों को तो मैं आपकी हथेली में साफ देख रहा हूँ, मगर ये 3 बरस के बाद होंगे। अब मैं अपने मतलब की तरफ आने लगा। मैंने उसके हाथ के सिरों को इधर उधर से देखा, फिर दूसरे हाथ को देखने लगा। अब मैंने सर को फिक्रमंदाना अंदाज में नफ़ी में हिलाया तो वो बोली, क्यों, क्या बात है डीकर, तुमको क्या नज़र आया हमारे इस हाथ में? मैंने कहा, मैडम, अगर आप साहब को ना बताएं तो मैं अर्ज़ कर दूँ, पहले वादा करें। यहूदी औरत एकदम संजीदा हो गई। बोली, डीकर मैं जानती हूँ इंडियन लोग बड़े ज़बरदस्त किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं। हम तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे साहब को हम नहीं बताएगा। तुम बोलो हमारे हाथ में क्या लिखा है? मैंने हाथ की लकीरों पर एक बार फिर नज़रें जमा दी और कहा, मैडम आपके सांप बड़े अच्छे हैं,
وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سانپ پر ایک دوسری عورت اپنا سایہ ڈال رہی ہے۔ وہ چونک کر بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے پہلے ہی شک تھا، یہ وہی پاکستانی لڑکی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اپنا ہاتھ میرے آگے کر کے بےتابی سے بولی، وہ کیا کر رہی ہے بتاؤ، جلدی بتاؤ، وہ مجھ سے میرے خامند کو چھین تو نہیں لے گیا۔ تیر ٹھیک ٹارگٹ پر لگا تھا۔ میں نے کہا، میڈم ایسی کوئی بات نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن یہ عورت مجھے بڑی چلاک لگتی ہے۔ اس کا ستارہ ذہن ہے جو بڑا منحوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپائے نہ کیا تو وہ آپ کے خامند کو اپنی طرف راغب کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہودی عورت فکر مند ہو گئی، کہنے لگی، ڈیکر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا، میڈم آپ صرف یہ معلوم کریں کہ یہ عورت جس جگہ قید ہے وہاں آس پاس یعنی کا کوئی حوض تو نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی حوض ہے تو میں آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دوں گا جو آپ حوض میں ڈلوا دیں، بس میرا تعویذ اپنا کام شروع کر دے گا اور یہ عورت آپ کے خامند کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ میڈم بولی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں آج ہی تمہارے صاحب سے معلوم کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میڈم اس بات کو راز میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں آپ کی خاطر کوئی تعویذ لکھ رہا ہوں تو اس تعویذ کا اثر جاتا رہے گا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ ممکن ہے تعویذ الٹا کام کرنا شروع کر دے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا صاحب نکل جائے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، میں کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کروں گی، تم تعویذ تیار کرنا شروع کر دو۔ وہ اٹھ کر کمرے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ اب ضروری تھا کہ اس کی ہاتھ سے بڑی ہوئی بے چینی کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ میرے حق میں زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے کہا، میڈم آپ کو بے چین یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار آپ یہ معلوم کر لیں کہ جہاں یہ پاکستانی لڑکی قید ہے وہاں ارد گرد کوئی پانی کا حوض ہے کہ نہیں، بس اس کے بعد آپ بھول جائیں، سارا کام میرا تعویذ خود بخود درست کر دے گا، یہ عورت آپ کا بال تک بیکا نہ کر سکے گی۔ میرے اتنا کہنے سے وہ مطمئن ہو گئی، کہنے لگی، ڈیکر میں تمہیں بہت انعام دوں گی، تم تعویذ بناؤ، ہم آج ہی رات پانی والے حوض کے بارے میں معلوم کر لے گا، اور فکر نہ کرو، ہم کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر سلام کیا اور سر جھکائے باہر نکلنے لگا تو اس نے آواز دے کر مجھے پاس بلایا اور کہا، ڈیکر تم بھی اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، اس میں میری بےعزتی ہوگی کہ میرا خامند مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہاں کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں نے کہا، میڈم میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں کس سے بات کر سکتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، آپ کا راز میرے دل میں محفوظ رہے گا، میں خفیہ طور پر آج ہی سے تعویذ بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ شاباش ڈیکر تم بڑا اچھا آدمی ہے۔ اتنا کہہ کر بھاری بھرکم یہودی میڈم نے اپنے آپ کو صوفے پر گرا دیا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری چال کافی حد تک کامیاب رہی تھی، اس کی مدد سے میں اس قید خانے کا حدود اربہ معلوم کر سکتا تھا جہاں سونیا قید تھی۔ اس قید خانے کے بارے میں اب میں مزید معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ میں نے چیف سیکورٹی آفیسر کی بیوی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اگر میں اسٹور میں عورتوں کی برانی گفتگو نہ سمجھ سکتا تو یہ چال نہیں چل سکتا تھا۔ تعویذ کیا بنانا تھا، وہیں سے سفید کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر کچن میں بیٹھ کر اس پر آڑی ترچھی لکیریں ڈالیں، جس طرح کے نجومی لوگ ذائچہ تیار کرتے ہیں۔ کھانے بنائے، ان میں کہیں کہیں ہندی کے کچھ الفاظ یوں ہی لکھ دیے اور اسے تہہ کر کے یہودی میڈم کے لیے تعویذ تیار کر لیا۔ اسی شام میں نے اسے تعویذ دکھا کر کہا کہ میں نے اسے تیار کر لیا ہے، اب جیل خانے کے ارد گرد کوئی تالاب یا حوض ہو تو میں اسے خود وہاں جا کر منتر پڑھنے کے بعد پانی میں ڈال دوں گا۔ میڈم بڑی خوش ہوئی۔ رات کو اس نے اپنے یہودی خامند یعنی چیف سیکورٹی آفیسر سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ صبح میں کام پر آیا تو جب یہودی برسام صاحب دفتر چلے گئے تو میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر کہا، ٹھیکر میں نے تمہارے صاحب سے جو کچھ معلوم کیا ہے اس کے مطابق جیل کے ارد گرد کوئی حوض نہیں ہے۔ ہاں، جیل کے پیچھے ایک چھوٹا سا مصنوعی تالاب بنا کر وہاں پانی جمع کیا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تم وہاں کیسے جاؤ گے، وہاں کوئی ملازم نہیں جا سکتا، کیا میں جا کر تعویذ تالاب میں ڈال دوں؟ تم نے پہلے تو کہا تھا۔ میں نے کہا، وہ میں نے ذائچہ بنانے سے پہلے کہا تھا میڈم، اب میں نے تعویذ پر ذائچہ بنایا تو دیکھا کہ آپ کے تالے پر بھی زحل پڑا ہے، جو آپ کا جانا ٹھیک نہ ہوگا، زحل آپ کے خلاف ہے، وہ اس تعویذ کو بے اثر کر سکتا ہے۔ میرے تالے میں کمر ہے، میں تعویذ کو کچھ منتر پڑھنے کے بعد تالاب میں ڈالوں گا
तो उसका असर कायम रहेगा। मैडम सोच में पड़ गई। वो बेजा फिक्रमंद नहीं थी, क्योंकि जेल के आसपास किसी भर्ती तामिल या दूसरे अदना मुलाजिम को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरा वहाँ जाना बेहद ज़रूरी था। इस ज़मन में मैं इस यहूदी औरत को हर हालत में ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने उसे खुद एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैडम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भेष बदल कर रात की तरीके में तालाब तक जाऊँ और ये तवीज़ तालाब में डालकर वापस आ जाऊँ। मामला उलझ गया था, मुझे कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम ने कहा कि वो इस मसले पर मज़ीद गौर करेगी। वो मुझसे ज़्यादा परेशान थी। मैंने उसे परेशान कर दिया था। उस रोज़ मैं बंगले की सफाई पर मामूर एक बूढ़ी तामिल औरत से देर तक बातें करता रहा। वो कोचीन की रहने वाली थी और अपने जराइम पेशा खामद के साथ कोचीन से फरार होकर 7 बरस पहले इस इसराइली जजीरे में आ गई थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि जेल कैंप के बाहर जनूब की जानिब एक ट्रैश डिस्पोजल है, जहाँ एक भारतीय तामिल शाम को थोड़ी देर के लिए सफाई की खातिर जाता है। ये मालूमात मेरे काम आ सकती थीं। दूसरे दिन मैंने दोपहर को मैडम से राजदारी में कहा कि जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर जो तामिल खकरोब काम करता है, अगर उसकी जगह एक शाम मैं लगा दिया जाऊँ तो मैं तवीज़ को तालाब में डालने का फरीज़ा अंजाम दे सकता हूँ। मैडम की आंखों में भी उम्मीद की किरण चमकी। फिर कुछ ना उम्मीद से होकर कहने लगी, तुम हमारे खान सामा हो, साहब तुम्हें ट्रैश डिस्पोजल नहीं भेजेगा। मैंने कहा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आप जाने आपका काम जाने। यह कहकर मैं बाहर जाने लगा तो मैडम उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, ठहरो ठहरो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी।